Hello students, how are you? In our today video, we are going to take the concept related or the questions arises in the previous video, that was a capital structure. Okay, and what are the factors which affect the capital structure? First was the formula is state the formula for calculating financial leverage. First, where we have to tell the formula with the formula which is related to calculate financial leverage. As we know that the financial leverage, what is financial leverage? Financial leverage is directly related to the debt and equity. So the answer is debt and equity. Next question is what is the impact of business risk on capital structure? What is the impact of business risk on capital structure? The answer is that increase in risk will decrease use of debt. The increase in risk will decrease use of debt. How it is possible, students? How it is possible? Student, one more concept, trade on equity is left. We will do it on the risk is associated, more the risk is associated with the borrowed fund as compared. As we know that if there is a more, the borrowed fund is more risky because they have to be returned early. आपको पता है borrowed fund जो है वो ज़्यादा रिस्की होते हैं, उन पे इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है और उन्हें रिटर्न भी जल्दी करना पड़ता है. तो दैट्स वाई जब रिस्क इंक्रीज होता है तो यूज़ ऑफ बोरोड फंड यानी डेप्ट डिक्रीज हो जाते हैं, और जब रिस्क कम होता है तो इंक्रीज ऑफ डेप्ट बढ़ जाता है. तो ये हमने किया था. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट. क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट ऑफ डेप्ट is lower than the cost of equity shares. Give reasons why even then a company cannot work only with debt. Cost of debt is lower than the cost of equity share capital. Give reasons why even a company cannot work only for the debt. Now try to understand this question, that cost of debt is lower than the cost of equity share capital. Give reason why even a company cannot work only with debt. सिर्फ debt से ही वो काम क्यों नहीं कर सकती? Because equity share capital is a permanent source of capital and provides it is a risk capital. Okay, that's why we cannot only work on the equity share capital. What is favorable financial leverage? What is favorable financial leverage? Favorable financial leverage क्या है? As you know that the financial leverage is a relationship between what? The financial leverage is the relationship between the debt and the equity. When the debt is more than equity, it is favorable, and when the debt is less than equity, it is unfavorable. Next, question number 6 is Amita Limited does not have any debt in its capital structure, but Kajal Limited has debt 15% in capital structure. The rate of return of both companies is 20%. Which company enjoys the benefit of trading on equity and why? देखिए स्टिल हमने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट नहीं किया हुआ, बट फिर भी बिकॉज जो काजल लिमिटेड है दे आर काजल लिमिटेड के जो कैपिटल स्ट्रक्चर में वो 15% डेप्ट है, और जो कि टैक्सेबल आइटम्स हैं. इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल आइटम. तो जो पहले ही डिडक्ट हो जाएगा 15%, तो इस वजह से जो उसको रिटर्न्स है वो जो है ज़्यादा बेनिफिट होगा. मैं अभी आपको एक क्वेश्चन ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी समझा देता हूँ एक ये, और इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. देखिए स्टूडेंट्स, इसी एग्जांपल को हम ले लें.
अगर हम इसी एग्जाम्पल को स्टूडेंट्स लेते हैं, जहां पर हम तीन कंपनियों की बात करते हैं स्टूडेंट्स, कंपनी एक्स, कंपनी वाई, कंपनी जेड। ओके, अब जो हमारी कंपनी एक्स है उसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 10 लाख। कंपनी वाई जो है उसके पास कितनी है? 5 लाख। और जो कंपनी जेड है उसके पास कितनी है? 2 लाख। अब प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कितनी है? एक्स में कुछ भी नहीं है, वाई में भी कुछ नहीं है, और जेड में कितनी है स्टूडेंट्स? 3 लाख। डिबेंचर्स कितने हैं? कंपनी एक्स में कुछ नहीं है, वाई में 5 लाख है, और कंपनी जेड में भी कितनी है? 5 लाख। इस तरह करके तीनों कंपनीज की टोटल कैपिटल कितनी है? 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख। इज दैट क्लियर? अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 25% पर एनम है, यानी जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो जो अर्निंग हो रही है वो 25% है। अब कैपिटल 10 लाख है, तो 10 लाख पे इंटरेस्ट कितना बनेगा स्टूडेंट्स? 25%। 25% ऑफ 10 लाख, तो दैट विल बी 2,50,000। वाई को भी कितना मिलेगा? 2,50,000। जेड को भी कितना मिलेगा? 2,50,000। तीनों ही कंपनीज का जो EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, समझ आया? मैंने पहले भी बताया था कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितना हुआ स्टूडेंट्स? 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000। अब इसमें होगा लेस इंटरेस्ट ऑन डेब्ट्स, क्योंकि वो टैक्सेबल नहीं है, वो डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तो उसने कुछ पे करना ही था। यहाँ कितना था? 5 लाख का 50,000, और यहाँ भी कितना था? 5 लाख का 50,000। दोनों का 50,000 लेस हुआ, तो टैक्स आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया? 2,50,000, 2 लाख और 2 लाख। अब टैक्स कितना लग रहा है? 40% सब पे। तो 2,50,000 पे 40% कितना बनेगा? 1 लाख। और 2 लाख पे कितना बनेगा? 80,000। इधर 2 लाख पे कितना बनेगा? 80,000। तो टैक्स कितना बना? 1,80,000, 80,000। अब प्रॉफिट अवेलेबल कितना हुआ? 2 लाख में से 2,50,000 में से 1 लाख माइनस कर दिया। 1,50,000 250 में से 2,50,000 में से 1 लाख माइनस किया तो कितना आ गया? कितना आया स्टूडेंट्स? 1,50,000। सेम वे 2 लाख में से 80,000 माइनस किया तो प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी एंड प्रेफरेंस 1,20,000। इसमें भी कितना आया स्टूडेंट्स? 1,20,000। अब प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया? अब जो डिविडेंड बनता है प्रेफरेंस पे, वो भी लेस कर दो, तो वो कितना बनेगा स्टूडेंट्स? 1,50,000 में से, ये तो सारा इक्विटी शेयर्स होल्डर के नाम पे आ गया 1,50,000, इसमें से 1,20,000 आ गया। अब 1,20,000 में से 36% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने देखे थे? 12% पे कितना था? 3,60,000। सॉरी 3 लाख था, तो कितना हो गया? 36,000। कितना हो गया? 36,000। तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना आ गया? 84,000। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या माने हमने? 20,000 माने थे। तो अर्निंग पर शेयर कितनी हुई? 1 रुपीज़ 50,000
2 rupees 40,000 and 4 rupees 20 4 rupees 20 पैसा, 1 rupees 50 पैसा एंड 2 rupees 40 पैसा। तो किस में बेनिफिट हो रहा है स्टूडेंट्स? यस, कंपनी वाई और जेड में आएगा, बिकॉज दे हैव अदर देन द, उनके पास सिर्फ इक्विटी शेयर्स के अलावा भी जो कैपिटल थी, इसलिए बाकी को प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा अर्निंग हो रही है पर शेयर्स पे। दैट्स वाई ईपीएस ऑफ कंपनी वाई एंड जेड इज हायर देन द दिस application. If you want to take one more example, then I can give you one more example of that. Yes, I can give you one more example of that. Equity per shares. If you are in, is that clear? किस तरह से इक्विटी ऑन शेयर्स को हमें बेनिफिट्स होता है, दैट इज द लॉजिक। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट आएगा स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, एक और हम अर्निंग पर शेयर्स का ले लेते हैं कि एक क्वेश्चन और समझिए कि हाउ डज द इक्विटी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इंक्रीज द रेट ऑफ रिटर्न्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, और हाउ आर द शेयर होल्डर्स लाइकली टू गेन विद द लोन कंपोनेंट्स इन द कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्सप्लेन विद द सूटेबल एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ ले लेते हैं कि सपोज करो हम ले लेते हैं यहाँ पे शेयर कैपिटल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, दोनों की कैपिटल कितनी ले लेते हैं हम? 10 लाख 10 लाख। इसमें से सॉरी दिस इज 4 लाख, इसमें से लोन इस पे कुछ भी नहीं है दोबारा, एंड इस पे लोन कितना है स्टूडेंट्स? 6 लाख। टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 10 भी और यहाँ भी 10। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हम क्या ले लें? प्रॉफिट बिफोर हम इंटरेस्ट ले लें 3 लाख और 3 लाख, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना है? यहाँ पे तो नील है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे कितना है? 6 लाख पे कितना लोन लिया था हमने? 15% मान लो, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 0.9 लाख। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितनी हो गई? ये तो हो गया कितना? 3 लाख, और ये कितना हो गया? 2.1 लाख। क्लियर स्टूडेंट्स? अब टैक्स कितना मान लें हम? हमने टैक्स माना 50%, तो ये कितना हो गया? 1.5 लाख, और यहाँ पे कितना हो गया? 1.05 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा यहाँ?
1.5 लाख और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.05 लाख। अब यहाँ रेट ऑफ रिटर्न लेना है तो आप आराम से निकाल लो कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख, कितने के ऊपर हुआ 10 लाख के ऊपर, ठीक है। 1.5 लाख रिटर्न कितना मिला 10 लाख के ऊपर, तुम्हारा रेट ऑफ रिटर्न हो गया इस पे कितना, कैलकुलेट करूँगा तो इस पे तो आएगा 15%, कितना आएगा 15%। और यहाँ पे कितना आएगा कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा तुम्हारा 26 पॉइंट समथिंग। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन डू इट। इज दैट क्लियर। तो स्टूडेंट इस तरह से हम जो है अर्निंग पर शेयर्स को समझ सकते हैं और कर सकते हैं स्टूडेंट। और इसमें अर्निंग पर शेयर्स में स्टूडेंट्स हमने अब आज जो नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। आज हम नया जो टॉपिक करेंगे स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इस टॉपिक को करने के लिए स्टूडेंट्स हमें थोड़ा सा पहले तो ये समझना पड़ेगा कि व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता क्या है, ठीक है। इसे हम अलग अलग नामों से भी बीच में स्टूडेंट्स करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्टूडेंट्स। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तो मैं बता ही चुका हूं आपको, ठीक है। ट्रेडिंग ऑन मैं इक्विटी आपको ऑलरेडी समझा ही चुका हूं। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये मैं बता चुका हूँ कि फर्म्स जो है डिफरेंट असेट्स में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। तो इसे हम कैपिटल बजटिंग और शॉर्ट टर्म और वर्किंग कैपिटल डिसीजंस के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। as involves huge amounts of funds and irreversible huge, and this influence overall business risk in the form short term investment decisions are called working capital decisions, which affect day to day working of the business, and these decisions affect the liquidity as well as the profitability of the business. तो स्टूडेंट्स इसमें अब नेक्स्ट हम जो है फैक्टर्स इफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अभी हमने पिछले उसमें क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, यस हमने कैपिटल स्ट्रक्चर यानी फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द फैक्टर्स which affecting the investment decisions. What are the factors which affecting the investment decisions? Is that clear students? सबसे पहला आता है स्टूडेंट्स कैश फ्लो पोजीशन और कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कैश फ्लो।
मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैश फ्लो मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश मीन्स इट इज रिलेटेड टू द रिसिप्ट एंड पेमेंट ओवर द कैश. Now when we talk about the cash flow of the project, now students, when जब students a company takes the cash flow over a period of time or lifetime of the proposal, तो proposal should be considered and analysis selecting the best proposal. Suppose lifetime investment is 10 years, 10 years, 10 years. The net cash flow inflow during the lifetime of investment. Number one 5 lakh, 7 lakh and 2 lakh. तो स्टूडेंट्स कंपनी किस पे जाएगी? यह स्टूडेंट कौन से प्रपोजल पे जाएगी? स्टूडेंट्स ये जाएगी कंपनी प्रपोजल नंबर सेकंड पे, क्योंकि यहाँ पे कैश फ्लो इनफ्लो क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है. लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट सेम ही है 10 ईयर्स. दैट्स वाई द कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. तो द अमाउंट ऑफ दिस कैश फ्लो शुड बी केयरफुली एनालाइजिंग. जब भी हम देखेंगे तो कैश फ्लो देखेंगे. नेक्स्ट देखेंगे हम स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिटर्न्स. क्या देखेंगे? रेट ऑफ रिटर्न्स. द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम ईच प्रपोजल एंड रिस्क इन्वॉल्व इन दैम शुड बी टेकन इनटू द बेस्ट रिटर्न. अब हमने देखना कि रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है. देखिए आपके पास 3 प्रपोजल है, तीनों में आपने अलग अलग पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ पे आप क्या देखोगे स्टूडेंट्स? यस, वहाँ पे आप देखोगे रेट ऑफ रिटर्न्स कितना आ रहा है. इन्वेस्टमेंट पहले तो आप देखोगे कैश इनफ्लो कितना हो रहा है. भाई जब भी आप इन्वेस्ट करोगे तो आप किस चीज़ का ध्यान दोगे कि कितना कैश इनफ्लो हो रहा है. जब आपके पास यहाँ पे टाइम पीरियड के हिसाब से जिसमें कैश इनफ्लो ज़्यादा होगा उसी डिसीजन को लोगे. सेकंड आता है रेट ऑफ रिटर्न. रेट ऑफ रिटर्न मीन्स अब सपोज करो मैंने कहीं 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, 15 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, मेरे पास 3 प्रपोजल आए, ठीक है ना. सपोज करो मैंने एक कंपनी खोली है, कुछ भी खोला, मेरे पास 3 प्रपोजल आए हैं, 3 प्रपोजल्स आए हैं, और इन 3 प्रपोजल की अलग अलग सिचुएशंस हैं. उन केसेस में स्टूडेंट्स मैं देखूंगा कि मेरे पास रेट ऑफ रिटर्न किस पे जा रहा है. मान लो प्रपोजल नंबर 1 में मुझे रेट ऑफ रिटर्न 13% आ रहा है, प्रपोजल 2 में मुझे 24% आ रहा है, और प्रपोजल 3 में मुझे 15% आ रहा है. तो स्टूडेंट मैं किस पे जाऊंगा? नेचुरल है, मैं प्रपोजल नंबर 2 पे जाऊंगा. तो दैट्स वाई आई विल चूज द प्रपोजल नंबर 2. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व. देखिए मैं फिर बता दूं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स कहाँ पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें. दैट मे बी अ लॉन्ग टर्म और दैट मे बी अ शॉर्ट टर्म. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व. अब अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है. जब हम इन डिफरेंट क्राइटेरियाज को स्टडीज करते हैं, द वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आर इवेलुएटेड on the basis of capital budgeting techniques and this involve calculations of investment amount, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना कैश फ्लो है, कितना रेट ऑफ रिटर्न है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, वो सारा कंसीडर करते हैं. और उसके बाद हम जो है सबसे कम पर आता है उसी को हम चूज़ करते हैं किसके लिए? कैश इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए. तो स्टूडेंट समझ आए क्या था? इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते टाइम हमने किन किन बातों का ध्यान दिया स्टूडेंट्स? यस, पहला कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, सेकंड हमने क्या देखा? रेट ऑफ रिटर्न, और थर्ड वन हमने क्या देखा? इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व. इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मीन्स जब भी हम डिसीजन लेते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तो हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, एंड दैट कैलकुलेशन इज नोन एज द कैपिटल बजटिंग टेक्निक. और ये टेक्निक जो है कभी भी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कैलकुलेट करने के बाद ही हम करते हैं. ये आगे जब आप सीनियर स्टडीज़ करोगे एज यूजुअल आप सीखोगे. यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप्स के क्राइटेरिया आपको बता ही दिए. स्टूडेंट ये आपका सेकंड प्रोजेक्ट जो सेकंड असाइनमेंट है जो आपको अटैम्प्ट करना है. दिस इज द सेकंड असाइनमेंट यू हैव टू अटैम्प्ट. ओके, तो जैसे फर्स्ट है नेम द फाइनेंस डिसीजन which will help a businessman in opening a new branch of its business.
नेम द फाइनेंसिंग डिसीजन विच विल हेल्प अ बिजनेसमैन इन ओपनिंग अ न्यू ब्रांच ऑफ इट्स बिजनेस। अब कोई नई ब्रांच खोलनी है तो सबसे पहले उसे क्या देखना पड़ेगा वहाँ पे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। A company wants to open a new unit which requires machinery worth 15 crore. Identify the financial decision here. अब तीन टाइप के फाइनेंशियल डिसीजन है ना, तो फाइनेंशियल डिसीजन में यहाँ कौन सा आएगा, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसे कितना इन्वेस्ट करना है। नेम द फाइनेंशियल डिसीजन इन विच द बिजनेस यूजेज ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स फॉर यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी इन बिजनेस। ये भी इन्वेस्टमेंट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखना पड़ता है कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो ठीक है ना, इसमें हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को ही स्टडी करना पड़ता है, तभी हम किसी आंसर पे आते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जो हमारा ये इन्वेस्टमेंट्स हैं ये टू टाइप्स का हो सकता है, एक फिक्स्ड असेट्स और एक करंट असेट्स। स्टूडेंट फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स क्या होते हैं, यू ऑल मस्ट नो अबाउट दैट। आप सबको पता होना चाहिए कि फिक्स असेट्स और करंट असेट्स क्या होते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से करेंगे। यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट्स, यू ऑलमोस्ट नो द फिक्स असेट्स एंड द करंट असेट। यस, फिक्स असेट्स और फिक्स, जब हमारे जो असेट्स लॉन्ग टर्म तक यूज होते हैं, ठीक है ना, जैसे मशीनरी, वेरी गुड, प्रीमाइसिस, वेरी गुड, तो ये सारा हमारा किस में आता है, फिक्स एसेट्स में आता है। तो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यू ऑल नो दैट द फिक्स एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और जब वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, एज यू ऑल नो दैट इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। लेकिन वहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ता है कि कितने टाइम तक का वो इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। और दूसरा इसमें कौन सा आता है, करंट असेट्स। करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जनरली जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, नेट करंट असेट्स। अब नेट करंट असेट्स क्या होंगे, कोई बता सकता है, जिसमें से हम डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस कर देते हैं। तो पहले तो करंट असेट्स क्या होते हैं, करंट असेट्स आर दोज असेट्स, ध्यान से सुनना, करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश, जो कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, दे आर कॉल्ड करंट असेट्स, एंड अबव द 1 ईयर दे आर कॉल्ड द फिक्स असेट्स। और फिक्स असेट्स को करंट असेट्स में कोई एग्जांपल दे सकते हो स्टूडेंट्स, और करंट असेट्स का कोई एग्जांपल दे सकते हो स्टूडेंट्स, बताओ। नहीं, सोचो सोचो सोचो। यस, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, these are the फर्नीचर, नहीं फर्नीचर नहीं, फर्नीचर इज अ एग्जांपल ऑफ फिक्स एसेट्स। और कोई, डेटर्स, यस डेटर्स जानते हो ना, यस जिनसे हमने पैसा लेना है, दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ करंट असेट्स। ऐसे फिक्स असेट्स के आप एग्जाम्पल दे चुके हो। तो इन्हीं इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स और फिक्स असेट्स के बेसिस पे हम अपने डिसीजंस लेते हैं स्टूडेंट्स, और उसी बेस पे हम काम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस पे लेते हैं, फिक्स असेट्स क्या है और हमारा नेट करंट असेट्स क्या है। इनके बेस पे हमारे दो बनते हैं, एक तो आता है फिक्स कैपिटल और एक आता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वाले को हम स्टूडेंट्स बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, और वर्किंग कैपिटल वाले को वर्किंग कैपिटल के नाम से ही स्टूडेंट्स हम जानते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने क्या क्या स्टूडेंट्स रिवाइज किया, क्या क्या हमने पढ़ा। यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड। आज हमने इस पूरी वीडियो में एक तो पढ़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स, और दूसरा हमने क्या पढ़ा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे। हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे। तो हमारी ये दो वीडियोस जो है हमने इसमें इससे रिलेटेड आज हमने इन्वॉल्व किए हैं, आज हमने इनके बारे में स्टडीज़ किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी डाउट।
एनी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, देन यू कैन टेल मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. ओके, तो वी आर वेटिंग फॉर यू. Thanks, students. Thanks a lot. Thanks.